हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो पहला क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 88 इफ द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। ओके, सबसे पहले लिखेंगे लेट द स्मॉलर नंबर बी, let the smaller number be x, let the smaller number be x, so larger number क्या है बच्चों? larger number क्या है? is means equals to 5 less, 5 माइनस करेंगे किसमें से? twice the smaller number, twice the smaller means 2 into x minus 5. Larger number is 5 less than twice the smaller means 2x minus 5. Okay, अब दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस 88 है, दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस 88. लार्जर नंबर स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर square gives you 88. Larger number 2x minus 5 whole square, smaller number x whole square 88. Students, a minus b whole square क्या होता है? a square plus b square minus 2ab minus x square equals to 88. 4x square plus 25 minus 20x minus x square equals to 88. 4x square minus x square 3x square minus 20x plus 25 equals to 88. 3x square minus 20x plus 25 minus 88 equals to 0. 3x square minus 20x, this will be 353. Okay, 63, 63 minus equals to 0. ओके क्लास, ठीक है। अब क्या है देखो, 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 63 इक्वल्स टू 0. 63 3s फैक्टर्स क्रिएट करो इस तरह से कि माइनस करने पर 20 आ जाए. 63 into 3, 63 into 3, 63 into 3 के फैक्टर्स कुछ इस तरह से अरेंज करो कि माइनस करने पर 20 आ जाए. इसको फैक्टराइज करना है क्लास यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. 63 मल्टीप्लाई विद 3, 63 मल्टीप्लाई विद 3. 63 को लिखा अपन ने 3 into 21, 3 as it is. फिर 21 को लिखा 3 into 7. ओके, 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 and 7. 27 और 7 का डिफरेंस, 27 और 7 का डिफरेंस 20. ओके, 3x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 7x माइनस 63 इक्वल्स टू 0. इसमें कुछ कॉमन है क्लास? 3x, x माइनस 9 प्लस 7 कॉमन, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. कुछ कॉमन है क्लास? x माइनस 9, 3x प्लस 7 equals to 0. First of all, x minus 9 compare with 0, x equals to 9, and 3x plus 7 equals to 0, x equals to minus 7 upon 3. ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स बात समझना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 88. हाँ, तो x equals to 9. This is not possible. So x equals to 9. स्मॉलर नंबर हम बोलेंगे, स्मॉलर नंबर कितना स्टूडेंट्स? x था ना, 9. एंड लार्जर नंबर कितना था बोलो? 2x minus 5, 2x minus 5. x means 9 minus 5. 2 9s are 18, 18 minus 5, 13. So two numbers are 13 and 9. Hence required numbers are 13 and 9.
ओके, hence required numbers are 13 and 9. क्लियर है क्लास? आपको समझ में आया? Required numbers are 13 and 9. स्मॉलर नंबर x था, so x तो 9, ठीक है। लार्जर नंबर 2x minus 5, 2 9s are 18, 18 minus 5 13. So required numbers are 13 and 9. बच्चों नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2010, आज से 10 साल पहले सीबीएसई ने पूछा, बताइए। 3 consecutive positive integers are such that the sum of the squares of the first and the product of other two is 46. Find the integers. 3 consecutive positive integers are such that the sum of the squares of the first and the product of other two is 46. Find the integers. देखो स्टूडेंट्स, let 3 consecutive positive integers be x plus 1 and x plus 2. Let the 3 consecutive positive integers be x plus 1 and x plus 2. Students, consecutive क्या होता है? Next to next. जैसे x का consecutive x plus 1, x plus 1 के बाद x plus 2. तो क्या बोलता है? Sum of the square of the first one का स्क्वायर करो, फर्स्ट वन कौन सा है? x, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा? x स्क्वायर। अब सम करना है, सम किसके साथ करोगे? प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू। प्रोडक्ट ऑफ अदर टू मींस इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। और रिजल्ट कितना आने वाला है? 46, ठीक है। x स्क्वायर x इंटू x, x स्क्वायर 2x plus 2 equals to 46. 2x square plus 3x plus 2 equal to 46. 2x square plus 3x minus 44 equals to 0. 44 2s are 88. 88 के फैक्टर्स बनाओ कि माइनस करने पर 3 आ जाए। 11 8s are 11x minus 8x minus 44 equals to 0. Take 2 common, sorry, take x common. 2x plus 11. Take minus 4 common. 2x plus 11 equals to 0. 2x plus 11 and x minus 4 equals to 0. 2x plus 11 equals to 0. X becomes minus 11 by 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पॉजिटिव चाहिए था और वो भी इंटीजर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। इसके बाद देखो x minus 4 कंपेयर विद 0, x कितना आया? 4, यस, x 4, so 3 consecutive positive integers are x 4 and next 5 and next 6. Answers 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगेन, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive even numbers is 340. Find the numbers. Sum of the squares of 2 consecutive even numbers is 340. Find the numbers. होता है consecutive even numbers. Let 2 consecutive even numbers be x and x plus 2. Because x का नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इवन x plus 1 नहीं हो सकता, x का होगा फिर x plus 2। जिस तरह से पहले सपोज 2 है तो 2 का नेक्स्ट इवन 4, 4 का नेक्स्ट इवन 6, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 10, 12, 14, 16, तो 2 ऐड कर रहे हैं। हाँ बच्चों देखो 2 4 6 8 10 12, तो 2 का गैप है ना, सो मैंने क्या सपोज किया, लेट 2 consecutive even numbers be x and x plus 2।
अब इनका स्क्वायर्स का सम, पहले स्क्वायर करो, x का स्क्वायर x स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर। अब इनका सम करना है, सम कर दिया, कितना आया 340। ओके, नाउ x स्क्वायर प्लस 4x 340, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 340 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 336 इक्वल्स टू 0। टेक 2 कॉमन, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 तो 2 2 6 12 2 8 16, ठीक है। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मतलब डिवाइड हो जाएगा 0/2, 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे करो उसको फैक्टराइज यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 168 1 सा 168 फैक्टर्स बनाओ कि माइनस करने पर 2 आ जाए। 168 मींस 2 into 84 means 84, 2 into 42 means 42, 2 into 21, ठीक है। what is 21? 3 into 7, class 3 multiplied by 2 6, 6 multiplied by 2 12, 12 and 2 into 7 14, 14 and 12 डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 14 and 12 difference is 2, yes। x square plus 14x minus 12x minus 168 equals to 0। take x common, x plus 14 minus 12 common, x plus 14, now x plus 14 and x minus 12, x plus 14 compare with 0, x equals to minus 14, which is not possible, that will be not possible, okay। and x minus 12 compare with 0, x कितना है students 12, yes, x is 12। so finally हम बोल सकते हैं 2 consecutive even numbers are 12 and 14। answers are 12 and 14। so two consecutive even numbers are 12 and 14। okay students, एक बार क्या बोला हमने लास्ट में, so two consecutive even numbers are 12 and 14। next देखो बच्चों, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी आई थिंक ऑप्शनल में दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अ ट्रेन ट्रैवल a distance of 300 kilometer at constant speed। ट्रेन ट्रैवल करता है distance of 300 kilometer at constant speed। if the speed of the train is increased by 5 kilometer an hour, ठीक है, अगर हम ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करते हैं, मतलब स्पीड को बढ़ाते हैं, then journey would have taken 2 hours less। ये तो ऑब्वियस है, आप स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम कम लगता है ना। जब आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम कम लगता है, तो कितना डिफरेंस हो टाइम का 2 hours लेस। एक्चुअल टाइम से 2 hours हमें कम लगा, है ना। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। आई सपोज लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। What I suppose original speed of train is x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Let the original speed of train be x किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स डिस्टेंस तो फिक्स है ना, डिस्टेंस तो फिक्स रहता है, चाहे आप स्पीड फास्ट करो या स्लो करो, आपका टाइम कम ज्यादा हो सकता है, बट डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। डिस्टेंस फिक्स है 300 किलोमीटर, हाँ। सो टाइम t1, टाइम तो द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 300 और स्पीड x, ठीक है, क्लियर। नाउ केस क्या है, स्पेशल केस कि स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। पहले स्पीड x, अब कितना हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। और डिस्टेंस सेम 300 किलोमीटर। सो टाइम t2, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 300, स्पीड कितना x प्लस 5,
ठीक है, दोनों में टाइम डिफरेंस कितना है 2 आवर्स। ठीक है, सो कौन सा टाइम ज्यादा होगा, यहां स्पीड x है, यहां स्पीड x प्लस 5, यहां स्पीड आपने बढ़ाया है, यहां स्पीड आपने बढ़ाया है तो टाइम कम लगेगा, यहां टाइम ज्यादा। दिस t1 इज ग्रेटर देन t2, t1 और t2 में डिफरेंस कितना है 2 आवर्स का। दिस टाइम इज 2 आवर्स, टाइम डिफरेंस इज 2 आवर्स। t1 ज्यादा है, t2 कम है, t1 माइनस t2 2 आवर्स। t1 का क्या वैल्यू है 300 अपॉन x, t2 का क्या वैल्यू है 300 अपॉन x प्लस 5, that will be 2, take 300 common, 1 by x minus 1 upon x plus 5, that will be 2, हाँ 300, take LCM x plus 5, here x plus 5 minus x, ठीक है, equals to 2, cancel, 300 5s are 1500, 2x x plus 5, 2 1s are 2, 750s are 750, x into x square plus 5x, and x square plus 5x minus 750 equals to 0। 750 के स्टूडेंट्स फैक्टर्स बनाओ इस तरह से कि माइनस करने पर 5 आ जाए। 25 30 आ बिल्कुल, 25 into 30 750 and difference is 5, x square plus 30x minus 25x minus 750 equals to 0, x plus 30, take minus 25 common, x plus 30 equals to 0, x plus 30, x minus 25 equals to 0, x plus 30 equals to 0, x equals to minus 30, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, and x minus 25 equals to 0, x equals to 25, yes, so original speed of train is, so original speed of train is 25 km per hour. Original speed of train is 25 km per hour. So original speed of train is 25 km per hour. Next देखो बच्चों, हमारा next question है, देखना, the speed of a boat in still water is 15 km per hour. Speed of boat in still water is 15 km per hour. It can go 30 km upstream and return downstream to the original point. ठीक है, 30 km अपस्ट्रीम गया और रिटर्न डाउनस्ट्रीम आया, डिस्टेंस सेम है, जाते हुए 30 और रिटर्निंग में भी 30, मींस ऑनगोइंग एंड रिटर्निंग डिस्टेंस इज सेम 30 30, बट जाते वक्त अपस्ट्रीम था और रिटर्निंग में डाउनस्ट्रीम है। इन 4 आवर, मतलब अपस्ट्रीम जाना 30 किलोमीटर और वापस रिटर्न डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर आना, दोनों में टाइम टोटल कितना है 4 आवर्स 30 मिनट्स, 4.5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब वाटर, हाँ, और बोट का स्पीड कितना है बच्चों, बोट का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। सपोज करेंगे लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट क्या है, बोलो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है 15 दे रखा है मुझे, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पता है आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है, देखो इधर बोट, इधर सपोज बोट का डायरेक्शन इधर है और वाटर इधर है, तो ये कहलाता है अपस्ट्रीम, दिस इज अपस्ट्रीम। ठीक है, और बोट इधर, वाटर आल्सो इधर, सेम, दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन सेम, इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम। इसमें डाउनस्ट्रीम में आता है। बोट और वाटर का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो अपस्ट्रीम, बोट और वाटर का डायरेक्शन सिमिलर है, सेम है, तो डाउनस्ट्रीम। ओके, अपस्ट्रीम में होता है बोट माइनस वाटर। अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं, बोट माइनस वाटर, और डाउनस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं, बोट प्लस वाटर। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं, बोट माइनस वाटर, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं, बोट प्लस वाटर। देखिएगा क्लास,
तो पहले अपस्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं अपन। अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम में बोट माइनस वाटर, बोट 15 माइनस वाटर, स्ट्रीम मतलब वाटर x, एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम में बोट प्लस वाटर, बोट प्लस वाटर। ठीक है, क्लियर है क्लास? हाँ, ऑनगोइंग अपस्ट्रीम था और रिटर्निंग में डाउनस्ट्रीम है, डिस्टेंस दोनों का सेम है 30-30। ओके, टाइम t1 फॉर ऑनगोइंग अपस्ट्रीम। टाइम क्या होता है बच्चों? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बच्चों? डिस्टेंस 30 और स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड बताओ 15 माइनस x। ठीक है, क्लियर है? आवर्स, टाइम t2 फॉर स्टूडेंट्स, टाइम t2 फॉर रिटर्निंग डाउनस्ट्रीम। ओके, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस सेम 30 और स्पीड कितना होगा? स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है? 15 प्लस x आवर्स। ठीक है, अब मुझे पता है टोटल टाइम कितना है? 4 आवर्स 30 मिनट्स, 4.5 आवर्स। t1 प्लस t2 4.5 आवर्स। t1 का वैल्यू कितना है? 30 अपॉन 15 माइनस x। t2 का वैल्यू कितना है? 30 अपॉन 15 प्लस x। टोटल टाइम कितना है? 2 4 8 प्लस 1 9/2। टेक 30 कॉमन, 1 अपॉन 15 माइनस x, 1 अपॉन 15 प्लस x इक्वल्स टू 9/2। 3 3s are 3 10s are 15 माइनस x, 15 प्लस x, 15 प्लस x प्लस 15 माइनस x, this will be 3/2 and 10, 1/10 बन जाएगा ये, प्लस x माइनस x कैंसिल, 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 30। देखो क्लास, फिफ्टीन प्लस 15 that will be 30, 15 minus x, 15 plus x, a minus b, a plus b, a square minus b square equals to 3/20. Okay, cross multiply 30 into 20, cross multiply करो बच्चों, 3 into 15 square minus x square, 20 into 30, 3, 15 square 225 minus x square, 20 into 30, 3 ones are 3 tens are, class 225 minus x square, 20 tens are 200. okay, कोई दिक्कत? minus x square 200 minus 225 minus x square equals to minus 25, minus minus cancel, x square equals to 25, x becomes square root of 25, 5. so speed of stream कितना है बच्चों? speed of stream is 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है क्लास? सो फाइनली हम क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो. स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना. प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम. अपने एक्चुअल टाइम से वो 30 मिनट्स लेट हो चुका है टेक ऑफ करने में. ओके, एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, it has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. स्टार्टिंग में टेक ऑफ करते हुए 30 मिनट्स वो लेट हो चुका है, मतलब स्टार्टिंग में वो 30 मिनट्स लेट हो चुका है, लेकिन उसे डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचना है. और टू रीच डेस्टिनेशन ऑन टाइम उसको अपना स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा. और उसने स्पीड कितना इंक्रीज किया? जो उसका यूजुअल स्पीड है उससे 250 और इंक्रीज किया टू रीच द डेस्टिनेशन ऑन टाइम. बिल्कुल डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचने के लिए उसने अपना स्पीड इंक्रीज कर दिया बाय 250 किलोमीटर पर आवर. हाँ, सो फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड. लेट यूजुअल स्पीड बी
लेट यूजुअल ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन बी, क्या सपोज करेंगे बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, और डिस्टेंस कितना है, टोटल जर्नी कितना है, 1500 किलोमीटर्स, 1500 किलोमीटर्स, टोटल जर्नी 1500 किलोमीटर्स। सो टाइम, एक्चुअल टाइम कितना लगना चाहिए, यूजुअल टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 1500 और स्पीड x आवर्स। ओके, बट स्पेशल केस है, स्पीड को इंक्रीज करना पड़ा। इफ स्पीड इंक्रीज्ड बाय कितना, 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस 1500 किलोमीटर, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 1500, स्पीड x प्लस 250, ठीक है, आवर्स। बच्चों इस टाइम में और इस टाइम में डिफरेंस कितना है, हाफ एन आवर का, बिकॉज 30 मिनट्स स्टार्टिंग में हम लेट हो गए थे। 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर, मतलब जो उसका शेड्यूल टाइम था, टाइम ऑफ जर्नी था, वो कम लगा बिकॉज उसने स्पीड बढ़ाया, स्पीड इंक्रीज किया तो टाइम कम लगा। कितना टाइम कम लगा, हाफ एन आवर कम लगा, मींस ये टाइम ज्यादा है। दिस टाइम t1, वी कॉल्ड दिस टाइम t1 एंड दिस विल बी t2। ये टाइम बड़ा है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगा है। जब स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगता है बच्चों, बताया मैंने आपको। जब स्पीड को इंक्रीज करोगे तो पहुंचने में टाइम कम लगेगा, ये तो क्लियर है ना। जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगता है। यहां पे हमने स्पीड को इंक्रीज किया है, यहां स्पीड x है, यहां x प्लस 250 है, स्पीड यहां ग्रेटर है, यहां स्पीड ज्यादा है तो टाइम यहां पे कम लगेगा। यहां टाइम कम, यहां टाइम ज्यादा, t1 बड़ा है, t1 बड़ा है t2 से कितना, बोलो कितना, हाफ एन आवर। 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर। t1 के लिए बताओ 1500 अपॉन x, t2 के लिए बताओ 1500 अपॉन x प्लस 250 इक्वल्स टू हाफ एन आवर। 1500 बच्चों कॉमन, 1500 कॉमन, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 250 इक्वल्स टू हाफ एन आवर। 1500 x प्लस 250, x प्लस 250 माइनस x हाफ, x कैंसल, 2 into 1500 into 250 equals to x plus 250। ठीक है क्लास, 1500 2s are, this will be 3000, 250 x square plus 250x, 25 3s are 75, 1 2 3 4, 1 2 3 4, x square plus 250x, x square plus 250x minus 75, 4 times 0 equals to 0। फैक्टर्स बनाओ बच्चों, दिस इज 7,50,000 यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्टूडेंट्स बताओ क्या फैक्टर्स बनेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से और फैक्टर्स बनाओ इस तरह से कि माइनस करने पर 50 आ जाए। इसके फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे, यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दिस 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1, इनके फैक्टर्स इस तरह से अरेंज करो कि माइनस करने पर तुम्हें 250 मिल जाए। तो बच्चों एक बात बताओ, 1000 into 750 क्या होता है, यही होता है क्या, 1000 into 750 यही होता है क्या, और माइनस करके देखो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ तो कितना आ रहा है, यस 250 आ रहा है, मुझे यही चाहिए था। तो मैं क्या लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस 1000x minus 750x minus 754 times 0 equals to 0। कुछ कॉमन है क्लास, x plus 1000, कुछ कॉमन है क्लास, minus 750 x plus 1000 equals to 0। क्लियर है क्लास, देखिएगा इधर कुछ कॉमन है दोनों में, आप बताइए कुछ कॉमन है, यस x plus 1000। नाउ x minus 750
इक्वल्स टू 0, x प्लस 1000 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1000, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट x माइनस 750 इक्वल्स टू 0, कितना आएगा, x इक्वल्स टू 750, x का वैल्यू 750। तो यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन कितना हुआ, क्या सपोज किया था मैंने, x, तो x कितना हुआ 750 किलोमीटर पर आवर। तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखो इधर यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन हमने x सपोज किया था, तो क्या बोलेंगे लास्ट लाइन, हेंस यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इज 750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 years ago Varun age was 5 times the square of Swati age. 7 years ago Varun age was 5 times the square of Swati age. Full stop. 3 years hence Swati age will be 2/5 of Varun age. Find their present ages. बच्चों यहां पे जो गिवन है वो तो एक तो 7 years पास्ट में स्टोरी गिवन है, 7 साल पहले की स्टोरी, और फिर बाद में गिवन है 3 साल आगे का फ्यूचर। प्रेजेंट में कुछ गिवन ही नहीं है, गिवन है तो पास्ट और फ्यूचर, और पूछता है प्रेजेंट। तो एजम्पशन कैसे लेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें पता पास्ट का है और फ्यूचर का है, और पूछता हमसे प्रेजेंट है, तो एजम्पशन जो होगा वो हमें पास्ट का लेना बेटर है। पास्ट का एजम्पशन ले लेते हैं हम बोलते हैं 7 years ago let Swati was X years old। हाँ, 7 साल पहले हम मान लेते हैं स्वाति की एज X रही होगी 7 साल पहले। तो वरुण कितना रहा होगा, वरुण एज वॉज 5 टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। तो सेम 7 years ago लेट वरुण एज कितना हो जाएगा, वरुण वॉज 5 टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्वाति। स्वाति की एज का स्क्वायर कर दो, मतलब x स्क्वायर कर दो, ठीक है। 7 साल पहले स्वाति की एज x और वरुण की एज 5x स्क्वायर। अब आ जाओ प्रेजेंट में, स्वाति प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा बोलो। ये स्वाति 7 साल पहले x एज थी, स्वाति की 7 साल पहले 7 years पहले x था, तो आज कितना होगा बताओ। स्वाति प्रेजेंट एज x प्लस 7 years जुड़ जाएगा ना, समझो बच्चों। 7 साल पहले 7 years पहले स्वाति की एज x थी, तो आज कितनी हुई x प्लस 7। इसी तरह से वरुण प्रेजेंट एज बोलो 5x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, क्लियर है। स्वाति प्रेजेंट एज x प्लस 7, वरुण प्रेजेंट एज 5x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब फ्यूचर में चलते हैं, 3 years hence मतलब फ्यूचर, ठीक है। तो स्वाति विल बी आज स्वाति की एज x प्लस 7 है, 3 साल बाद x प्लस 7 प्लस 3 मतलब x प्लस 10 हो जाएगा। एंड वरुण की प्रेजेंट एज 5x स्क्वायर प्लस 7 है, 3 साल बाद 5x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 मतलब 5x स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला था, 3 years hence स्वाति एज विल बी, स्वाति एज कितनी बताओ, x प्लस 10 है, विल बी मतलब इक्वल्स टू 2/5, 2/5, 2/5 मतलब 2/5 ऑफ वरुण एज कितनी बताओ, 5x स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, समझ में आया। 3 years hence स्वाति एज मतलब x प्लस 10, विल बी मतलब इक्वल्स टू 2/5, 2/5
ऑफ वरुण एज, वरुण की एज 5x स्क्वायर प्लस 10। ठीक है क्लास, अब ध्यान दो, x प्लस 10 एज इट इज 2 into 5 10x स्क्वायर, 2 10s are 20 अपॉन में क्या चल रहा है 5 जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, 5 इससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 5 into x plus 10x square plus 20। ठीक है, 5 into x 5x, 5 10s are 50, 10x square plus 20। ठीक है, 5x plus 50 equals to 10x square plus 20, 0, 10x square minus 5x plus 20 minus 50, 0, 10x square minus 5x minus 30. So 10x square minus 5x minus 30 equals to 0. Take 5 common. 2x square minus x minus 6 equals to 0. 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 by 5 0, 2x square minus x minus 6 equals to 0, 6 2s are 12, 12 के फैक्टर्स बनाओ, 6 2s are 12, 12 के फैक्टर्स बनाओ इस तरह से कि माइनस करने पर 1 आ जाए, तो 4 into 3 12 और 4 minus 3 1, तो क्या लिखेंगे minus 4x plus 3x minus 6 equals to 0. Take common 2x, x minus 2 plus 3 common x minus 2, x minus 2, 2x plus 3, x minus 2 equals to 0 बच्चों, x equals to 2 and 2x plus 3 equals to 0 बच्चों, x equals to minus 3 by 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो x की वैल्यू क्या हुई 2। तो क्या पूछा उसने, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, क्या पूछा है बच्चों, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो क्या लिखेंगे देखना बच्चों, स्वाति प्रेजेंट एज, स्वाति प्रेजेंट एज बोलो x plus 7, x मतलब 2, 2 plus 7 9 years, and Varun present age, Varun present age 5x square plus 7, 5x square plus 7, x के प्लेस पे क्या पुट करोगे बच्चों 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 are 20, 20 plus 7 27। So Swati present age 9 years, Varun present age 27 years। Clear है क्लास, स्वाति present age 9 years, Varun present age 27 years। ओके स्टूडेंट्स, जो आज हमने पढ़ा ये सारे क्वेश्चन आप नोटबुक पे कंप्लीट करिए, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, बुक्स लो उठाओ, एनसीईआरटी है, 8 मंथ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करो, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो, ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ाई करो बच्चों। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।